الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم أخلاقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جناب آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا مزید احسان و کرم یہ بھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمعہ جیسا مبارک دن نصیب فرمایا، اور اذان کے ساتھ ساتھ مؤذن کی آواز پر لبیک کہہ کر اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ جمعہ ہی نہیں بلکہ 5 وقتہ نماز جو ہم پر تو نے فرض کی ہے، ہر نماز کے لیے جب بھی مؤذن آواز دے تیرے گھر میں آنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، کیونکہ اللہ یہ جو نماز ہے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ آپ نے ہمیں بارہا اس کا حکم دیتے رہے، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، اے میری امتیوں نماز کو قائم کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی یہی حکم فرمایا کہ اے میری قوم، اے میری امت، نماز کو قائم کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چیز تھی، اور ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب ہیں۔ اسی کا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ کیا تھا کہ کیسے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اب ہم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی محبت ہونی چاہیے۔ اگر ویسی محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی نقل تو کرنی چاہیے، تاکہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھا جائے۔ لہذا میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کامل ہونے کی علامت ہے، اور ہمارا ایمان اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے کیونکہ جناب آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، تم اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ اور تمام جہاں والوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہونی چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے۔ لہذا میرے محترم دوستو، ہماری محبت، اگر ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں اجاگر کرنا ہے تو صحابہ کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، اور کیوں نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، وہی بات آئے گی کہ آپ ایسے تھے بھی۔ اللہ نے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجا تھا، نمونہ بنا کر۔ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھ کر زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، اور اگر ہم ان کی زندگی کو چھوڑ کر دوسری زندگی اختیار کریں گے تو اللہ ہمیں ناکامیاب کرے گا۔ ظاہری زندگی ہو یا باطنی زندگی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ من تشبہ بقوم فہو من، ہم جس کی مشابہت اختیار کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارا ان کے ساتھ حشر کرے گا۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری مشابہت اختیار کریں گے تو ہم ایمان والے کہلائیں گے۔ سامنے والا سلام کرنے سے پہلے سوچے گا نہیں کہ میں سے سلام کروں
یا نہ کروں, بلکہ دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ یہ مسلمان ہے اور سلام مجھے کرنا چاہیے. کیوں؟ سر کے اوپر ٹوپی ہے, چہرے کے اوپر داڑھی ہے اور کرتا پیجامہ ہے, ٹخنوں سے اوپر پینٹ پہنا ہوا ہے, تو یہ مسلمان ہے کیونکہ اس نے سنت کو اپنایا ہوا ہے. اور ایک شخص ہے کہ سلام کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. صحابہ کو بہت محبت تھی. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آیا کرتے تھے. حضرت نے اپنے کتاب کے اندر لکھا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک صحابی آتے تھے, بیٹھتے تھے, چلے جاتے تھے, پھر آتے تھے, بیٹھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھتے, متوجہ ہو کر دیکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے خود ان کو دیکھتے. تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا سوالات کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے کیونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلم بنا کر دنیا میں بھیجا تھا. لیکن وہ صحابی آتے بیٹھتے چلے جاتے, آتے بیٹھتے چلے جاتے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور کہا, میں دیکھتا ہوں کہ آپ میرے مجلس میں آتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, کچھ سوال نہیں کرتے, کچھ پوچھتے نہیں, بس آپ مجھے دیکھتے رہتے ہیں. کبھی کبھی میری نگاہ آپ کے اوپر پڑتی ہے تو آپ نگاہ نیچے کرتے ہیں, جیسے ہی میری نگاہ آپ سے ہٹ جاتی ہے تو آپ مجھے دیکھتے ہیں, کیا بات ہے؟ فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں باہر ہوتا ہوں تو مجھے بے چینی ہوتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں باہر ہوتا ہوں تو بے چینی ہوتی ہے, میں کب کب آپ کا دیدار کروں میرا دل کہتا ہے, تو میں فوراً آپ کی مجلس میں آتا ہوں اور آپ کو دیکھتا رہتا ہوں. بس میرا مقصد آپ کو دیکھنا ہوتا ہے, اس لیے میں آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا, کیا تم اسی مقصد کے لیے آتے ہو؟ تو فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں اسی کے لیے آتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تب تو کوئی چیز تجھے جنت میں جانے سے نہیں روکے گی. صرف محبت, اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. اگر یہ محبت رہے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر ان کے ساتھ کرے گا. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آنے کے بعد دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور مجلس لگی ہوئی ہے. کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کی یاد آتی ہے, آپ کے پاس فوراً آتا ہوں. میں باغ کے اندر ہوتا ہوں, آپ کی یاد آتی ہے, فوراً مسجد نبوی آتا ہوں, آپ کا دیدار کرتا ہوں, سکون ہوتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بازار کے اندر ہوتا ہوں, آپ کی یاد آتی ہے, فوراً مسجد نبوی آتا ہوں, آپ کا دیدار کرتا ہوں, دل کو سکون پہنچتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دوست احباب کے ساتھ رہتا ہوں, آپ کی یاد آتی ہے, مسجد نبوی آتا ہوں, آپ کو دیکھتا ہوں تو سکون ہوتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت قائم ہوگی, اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حساب کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی انسان کے اعمال کے برابر ان کو طبقات میں رکھے گا. اللہ آپ کو سب سے بالا خانے میں رکھے گا, سب سے اوپر درجے میں رکھے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر مجھے وہاں پر آپ کا دیدار کرنا ہو تو میں آپ کا دیدار کیسے کروں؟ آپ کو تو اللہ اوپر رکھے گا تو میں تو نیچے رہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المرء مع من احب. اے میرے صحابی, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حشر اس کے ساتھ کرے گا جس سے تم کو محبت ہوگی. تمام صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی بشارتیں دی, اتنی خوشخبریاں دی, ہم کو کسی خوشخبری سے اتنی ہم کو خوشخبری نہیں, اتنا ہمارا دل خوش نہیں ہوا جتنا کہ اس حدیث سے ہمارا دل خوش ہوا. کیوں کہ ہم اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہاں والوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے. ہم کو یہ معلوم تھا کہ ہم اللہ کے نبی سے بے حد محبت کرتے ہیں, اور ہم کو یہ بات کنفرم تھی کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوں گے. محبت ہمیں بھی ایسی ہونی چاہیے, صرف زبان کی محبت نہیں, صرف زبان کی محبت نہیں, صرف 12 ربیع الاول کی محبت نہیں کہ ہم نے صرف نعرہ لگوا لیا, میلاد منوا لیا اور پورا کا پورا سال عیاشی میں گزار دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ کی اطاعت کرو, ہم نے ماں باپ کی اطاعت نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت نمازیں پڑھو, ہم نے 5 وقت نماز پڑھنا چھوڑ دیا. آج ہماری مسجدیں ترس رہی ہے, وہ میلاد منانے والے کہاں ہیں؟ پوری زندگی آقا نے نماز نہیں چھوڑی, آج ہماری مسجد ترس رہی ہے. 1 صف 2 صف ہوتی ہے کہ یہ آقا کی محبت ہے, کہ یہ آقا کی سنت ہے.
बार बार हमसे कहा जाता है और ये कहा जाता है कि उस शख्स की जुमा की नमाज नहीं होती जिसने खुतबा नहीं सुना। हम आशिक रसूल ऐसे हैं कि पूरा खुतबा खत्म होने के बाद, जमात ठहरने के बाद, एक रकात होने के बाद और बास तो कदमे में बैठने के बाद आते हैं, अपनी नमाज पढ़ते हैं और बाहर जाकर कहते हैं जुमा मुबारक हो। हम ऐसे आशिक हैं, हम ऐसे आशिक हैं। हमारा इश्क कैसा होना चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ मुखुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। इमाम साहब ने सलाम फेरा और फौरन उठे और भागते भागते ऐसे दौड़ गए जैसे कि दुनिया में मस्जिद के अंदर हमको कैद किया गया था, बरसों बरसों को बांध दिया गया था। वो आशिक कहते हैं कि बस हमने नमाज अदा की, फौरन भागो, हमको दुआ की क्या जरूरत है। अगर आका के सच्चे आशिक होते तो कहते कि अल्लाह के नबी ने फरमाया दुआ मुखुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है, लिहाजा रहना चाहिए। क्या नहीं सिखाया हमारे आका ने? सलमान फारसी से यहूदी ने कहा, सलमान फारसी से एक यहूदी ने कहा कि सलमान फारसी, तुम्हारे आका हैं कि तुम्हें छोटा छोटा भी मसला बताते हैं, अगर लुकमा गिर जाए तो उसे उठाकर साफ करके खाने का हुक्म बताते हैं, इस चीज को तो हम हकीर समझते हैं। आजकल के बड़े दिमाग वाले, बड़े घराने वाले, बड़े पैसे वाले इसी को अपना रहे हैं जो यहूदियों का तरीका था। डिनर क्या बोलो, टेबल के ऊपर खाना, चम्मच से खाना, नीचे गिर गया तो बेटा छोड़ देना, नहीं, हमारे आका ने वो सबक नहीं दिया। उस यहूदी को सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला ने कहा कि ये तो बात क्या खाने की बात, मेरे आका ने बैतुल खला करने के बाद सर्दी के मौसम में ढेला किस तरह इस्तेमाल करना और गर्मी के मौसम में किस तरह ढेला इस्तेमाल करना मेरे आका ने वही बतलाया। तो क्या आका ने ये नहीं बतलाया था कि बस रबीउल अव्वल में मेरा नाम लेना और पूरा का पूरा साल खामोश बैठना? नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आका से मोहब्बत हो तो पूरी सच्ची पक्की मोहब्बत हो, क्योंकि आका की जात वो जात थी। अल्लाह तबारक तआला ने खुद फरमाया था, हमने तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को मालूम करना है, आपकी सिफात को मालूम करना है, आपके अखलाक को मालूम करना है, वैसे अखलाक बनाना है और उसके बाद लोगों के बीच में निकलना है। जब हम लोगों के बीच में निकलेंगे तो लोग ये समझेंगे कि ये मुसलमान है, ये गैर मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान ऐसा होता है तब पता चलेगा जब वो आका के अखलाक के बराबर अपने अखलाक को रखेगा। कैसे अखलाक थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को इस बात पर मामूर किया था, इस बात पर तय किया था कि ऐ बिलाल जाओ किसी से कर्ज लेकर आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से कर्ज लिया, एक यहूदी से कर्ज लिया। 1 महीने की मुद्दत थी, 1 महीना हो गया। जैसे 1 महीना हुआ, 1 महीने से 1 हफ्ता पहले वो शख्स आया, यहूदी आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक के साथ बाहर ठहरा और कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां है? बुलाओ, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को कहां है? बुलाओ। आए थे बिलाल बाहर आए हैं तो उमर भी साथ थे, वही बाहर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए। फरमाया क्या बात है? कहा कि आपने मुझसे कर्ज लिया है, लिहाजा वो कर्ज मुझे दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुद्दत होने के लिए तो अभी 1 हफ्ता बाकी है, मैंने कर्ज लिया, ये बात सही है, लेकिन जब वक्त आएगा, तारीख आएगी तो मैं जरूर तुमको वापस कर दूंगा। उसने और बुरा भला कहने लगा नहीं, मुझे अभी कर्ज चाहिए, मेरा वापस चाहिए। उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपका हुक्म हो तो तलवार निकालो। कहा कि उमर क्या बात करते हो, हमने उससे कर्जा लिया है, उसे कर्ज वापस करना है, जाओ कर्ज का इंतजाम करो, ऐसे बातें मत करो। फिर उमर रजी अल्लाह ताला ने वापस गए और कर्ज के इंतजाम कर लाए, उस यहूदी को दे दिया। उस यहूदी ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कर्ज दे दिया, मैंने आपको बुरा भला कहा, मैं आपको इसलिए बुरा भला नहीं कह रहा था, मैंने आपसे मुझसे कर्ज लेना है, मैं आपको बुरा भला इसलिए कह रहा था कि मैंने अपनी किताबों में आपके औसाफ पढ़े थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी होंगे वो बड़े बुर्दबार होंगे, बड़े हलीम होंगे, बड़े समझदार, बड़े रहम करने वाले होंगे, वो बड़े समझदार होंगे, इसलिए मैं आपका इम्तिहान ले रहा था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मेरा कर्ज तो दे दिया, साथ में मुझे कलमा भी दे दीजिए। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब हम आशिक हैं, हम किसी से कर्ज ले लिए, लेने के बाद देता हूं, बहुत एहसान करया, आने के बाद देखेंगे
करेंगे। ये मेरे मोहतरम दोस्तों, आका के आशिकों की ऐसी हालत नहीं होती। आका के आशिकों की ऐसी हालत नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अखलाकियात का मुजाहिरा किया, तब जाकर यहूदी भी कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने बड़े बड़े दुश्मनों के साथ अच्छा मुजाहिरा किया अखलाक का। अबू सुफियान मक्का मुकर्रमा का सरदार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की गुजारिश के ऊपर बद्दुआ की, अल्लाह मक्का वालों के ऊपर क़हर नाज़िल कर देना। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल फरमाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में जैसा कहत पड़ा था कि तमाम लोग परेशान थे, उस तरह मक्का वाले परेशान हो गए, बारिश का कोई नामो निशान नहीं, गले के गले खत्म हो गए, तमाम मक्का वाले परेशान हो गए। खाने काबा की चादर पकड़ कर दुआ करने लगे, खाने काबा के पास गिरा कर दुआ करने लगे कि ऐ मक्का, ऐ मालिक की काबा, तो हमारे ऊपर बारिश को बरसा, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं। अबू सुफियान मक्का मुकर्रमा का सरदार था। तमाम लोग अबू सुफियान के पास आए और कहने लगे कि जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसे दुआ करवाओ, हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला बारिश बरसाए, जाओ। अबू सुफियान मदीना मुनव्वरा आया। सबसे पहले उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया। पहले से दोस्ताना था, क्योंकि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पहले बड़े बहादुर माने जाते थे, तमाम मक्का वालों की बात सुना करते थे। अबू सुफियान उनके पास गया, कहा कि उमर हमारी हालत बड़ी खस्ता है, हम बड़े तड़प रहे हैं, बारिश का कोई नाम निशान नहीं है, लिहाजा आप मेरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश कीजिए। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा नहीं सकता, क्योंकि हमने उनकी इतनी इज़ाएं दी है, इतनी तकालीफ दी है कि वो तकालीफें अगर हमारे सामने खाली जाहिर होती है तो हमको तकलीफें होती है। और क्यों ना मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस 23 साल जिंदगी में मुझे जितनी तकलीफ दी गई, उतनी मेरे से पहले जितने अंबिया गए गुजरे उनको इतनी तकलीफ नहीं दी गई। सोचो कितनी तकलीफ होगी। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग की थी, लोगों ने आपको झुटला दिया। आखिर में नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह अजाब को नाजिल फरमा, कैसी तकलीफ दी होगी। लेकिन आका फरमाते हैं कि मुझे 950 साल तक यूनुस का जमाना छोड़ दो, तमाम अंबिया का जमाना छोड़ दो, सिर्फ 23 साल में मुझे इतनी तकलीफ दी गई, और मैंने वो तकलीफ झेली इसलिए झेली कि अल्लाह मेरा एक एक उम्मती जन्नत में आए, बस मेरी सुन्नतों को अपनाकर। बस हम नाम लिए और बैठ गए, और साल आएगा, मुहर्रम आएगा, पहले मुहर्रम में नाच लेंगे, गा लेंगे, शियाओं का तरीका इख्तियार करेंगे। और जैसे ही रबीउल अव्वल आया, वही शियात का इबादा उड़ने वाले, वही शियाओं की तरफ पर चलने वाले, वही शियाओं के शियार पर चलने वाले, फिर रबीउल अव्वल पर कहते हैं कि हम सुन्नी है। ये सुन्नियत नहीं होती, ये सुन्नियत नहीं होती। कैसी तकलीफें दी गई होगी आका को, सोचो तो सही कि आका खुद फरमा रहे हैं कि 23 साल में मुझे इतनी तकलीफ दी गई कि मुझसे पहले तमाम अंबिया को दी गई, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। आप खाने काबा के अंदर सजदा किए होते थे, आपके ऊपर ओज रख दी जाती थी, ऊंट की ओज रखी जाती थी, गले के अंदर पंजा डालकर खींचा जाता था, सांस लेने को नहीं होता था, आपको तकलीफ दी जाती थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको छुड़ाते थे। तुम उस शख्स को तकलीफ दे रहे हो जो ये कहता है कि अल्लाह एक है, उस शख्स को तुम तकलीफ देते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ अबू बकर को भी तकलीफ दिया करते थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कैसी तकलीफ झेली होगी। अबू सुफियान ने कहा कि आका के सामने मैं जा नहीं सकता, लिहाजा उमर सिफारिश करो। कहा कि तू यहां से जा, वरना मेरी तलवार खुली है। वहां से सीधा अपनी बेटी उम्मे हबीबा अज़वाज मुतहरात में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया है, उम्मतुल मोमिनीन में से है, चलो बेटी के पास जाओ, बेटी को सिफारिश करेगी। गया, दस्तक दी, कहा कौन? अबू सुफियान। दरवाजा खोला और कहा कि अंदर आओ। जैसे ही बाप अंदर आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर बिछाया हुआ था, फौरन लपट दिया, लपेट कर एक तरफ रखा। उसने कहा कि बेटी, जब मैं आता हूं तो लोग अच्छे से अच्छे बिस्तर बिछाते हैं, अच्छे से अच्छे कालीन बिछाते हैं, मेरी आओ भगत करते हैं, तू है कि बिस्तर उठा रही है। कहा कि ये आका का बिस्तर है, आप नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकता? तो उम्मे हबीबा ने फरमाया, इन्नमल मुशरिकून नजीसुन, मुशरिकीन जो होते हैं वो नापाक होते हैं, मेरे आका के बिस्तर पर मैं तुम्हें कैसे बिठाओ। कहा बेटा हमारी हालत बड़ी खस्ता है, आपसे सिफारिश करो। कहा कि मैं सिफारिश नहीं करूंगी, तुमने आका के साथ क्या किया है हमें मालूम है, मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं करूंगी। फिर कहा कि अजीज जो है अबू बकर है, चलो अबू बकर के पास जाओ, वो मेरी बात भी नहीं टालेंगे,
और वो आका उनकी बात भी सुनेंगे। लिहाजा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और कहा कि अबू बकर आप मेरी सिफारिश करो। कहा कि मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। उसने कहा कि आखिर अब मैं ही खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बैठा और कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पानी के लिए तरस रहे हैं, बच्चे बिलबिला रहे हैं, औरतें तड़प रही हैं, बूढ़े तड़प रहे हैं और जानवर हैं कि वो भी प्यासे हैं, देखा नहीं जा रहा, आप दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक उठाए और कहा अल्लाह मक्का वालों की इस हालत को बदल दे। और कहा सुफियान तुम जाओ, तुम्हारे जाने से पहले बारिश आएगी। कैसे अखलाक होंगे। हमारे पुगो को एक थप्पड़ मारता है तो बरसों बरस बात नहीं करते। माँ बाप कुछ उफ बोलते हैं तो सालों साल माँ बाप से बेखफा होते हैं। उस आका को मक्का की 13 साल जिंदगी में इतनी तकालीफ दी गई, इतनी तकालीफ दी गई, उसके बाद आकर कहते हैं आका हमारी दुआ करो, तो फिर वो हाथ उठाकर कहते हैं कि अल्लाह तूने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, तूने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, मैं इसे वापस कैसे भेजूं? ऐ अल्लाह इसके जाने से पहले मक्का वालों की हालत को बदल देना। क्यों ना ऐसे आका से हमको मोहब्बत हो। अब मोहब्बत सिर्फ इसे नहीं कहते कि नारा लगाने से, मोहब्बत उसे कहते हैं कि पूरी जिंदगी आका का एक एक हुक्म हमारी जिंदगी के अंदर आए, वो असल आशिक है, वो असल आशिक है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक नहीं हजारों मिसालें हैं, हजारों मिसालें हैं। आपने कर ही बतलाया और हुक्म देकर ही बतलाया। एक साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा पड़ोसी बड़ा जालिम है, बड़ी इज़ाएं देता है, बड़ी तकलीफें देता है, लिहाजा आप चलिए मेरा कुछ फैसला कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, तू भी मुसलमान है, वही मुसलमान है, लिहाजा जा मैं तुझे तरतीब बताता हूं, वो तरतीब करना, वो तेरा पड़ोसी सुधर जाएगा। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए वो क्या है? कहा घर जाओ, अपना पूरा का पूरा सादो सामान घर के बाहर लाकर रखो और अपने सामान के पास बैठ जाओ, और आने जाने वाला जब कोई पूछे कि भाई घर रखकर बाहर क्यों बैठे हो, तो उसे कहना कि मेरा पड़ोसी बड़ा मुझ पर जुल्म करता है, इसलिए मैं घर छोड़कर बाहर बैठा हूं। वो साहबी गए और घर का पूरा सामान निकाल कर रोड के ऊपर रखा, सड़क के ऊपर रखा और बैठ गए। उधर के एक साथी आता, पूछता क्या हुआ? कहा कि मेरा पड़ोसी बड़ा जालिम है, वो मेरे पर बड़ा जुल्म करता है, लिहाजा मैं यहां पर सामान रखकर बैठा हूं। इधर से कोई आता, पूछता, वो पड़ोसी आया और कहने लगा कि ये तरतीब तुझे किसने बतलाई है, ये तरतीब तुझे किसने बतलाई है, चल मेरे साथ अंदर चल, तेरा सामान रखता हूं, मैं तुझे ईजा नहीं पहुंचाऊंगा। वो साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और जाने के बाद कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो सुधर गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना खयारकुम अहासिनुकुम अखलाका, तुम में बेहतर वो है जिसके सामने भी अखलाक वैसी होने चाहिए, पीछे भी अखलाक ऐसे होनी चाहिए। दोस्तों के सामने, लोगों के सामने बड़ा सूफी बना फिरता है, और घर के अंदर देखो, मोहल्ले के अंदर देखो, उसके किरदार कुछ और होते हैं। ऐसा नहीं मेरे मतलब दोस्तों, हम आशिक हो तो शुरू से लेकर तक मौत तक वैसे आशिक हो। जब आशिक बनकर खबर के अंदर जाएंगे, जब एक एक सुन्नत को अपनाकर खबर के अंदर जाएंगे, जब आका के बारे में पूछा जाएगा, सबसे पहले सवाल होगा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल होगा मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? और तीसरा सवाल होगा मा तक़ूलु हाज़ा रजुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे मुबारक खबर के अंदर बताया जाएगा और कहा जाएगा इस शख्स के बारे में तेरा क्या ख्याल है? अगर वो सुन्नतों को अपनाता होगा, अगर वो सुन्नतों को अपनाता होगा तो कहेगा कि ये तो मेरे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक एक सुन्नत को मालूम कर अमल करना। एक छोटी मुख्तसर बात करके बात खत्म करता हूं। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। औलिया से सबक लेना है मेरे मोहतरम दोस्तों, औलिया से सबक लेना है। अल्लाह हर दौर में वली को पैदा करता है, क़यामत तक अल्लाह ताला वलियों का सिलसिला जारी रखेगा। वो कैसे? अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया कुनु मअस सादिकीन, तुम सच्चों के साथ रहो। ये कौल हमारे लिए जरूरी है। हर दौर में वली मिलेगा, बस तलाश करना है, उसकी सोबत इख्तियार करना है, उसके साथ रहना है। शिबली रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। सकरात का वक्त था, आखिरी वक्त था, मौत का फरिश्ता आने का वक्त था, वजू की हाजत थी। शागिर्दों से कहा कि चलो मुझे वजू कराओ। शागिर्दों ने उठाया, बड़ी मशक्कत से उठाया, उम्र हो गई थी, बड़ी मशक्कतों से उठाकर हुजरे से बाहर लाए। लाने के बाद आपको वजू करवाया, वजू करवाने के बाद मुंह वगैरह पोछा, पोछने के बाद फिर खटिया के ऊपर जाकर लिटा दिए। थोड़ी देर के बाद कहा
कि मुझे फिर से वजू कराओ। शागिर्दों ने कहा कि हजरत, हमने बड़ी मशक्कत से आपको वजू कराया है, आपको ना उठा जा रहा ना आपको बैठा जा रहा, हमने बड़ी मशक्कत से आपको वजू कराया है, अभी तो आपने वजू किया है, और क्यों वजू करना चाहते हैं? फरमाया कि मैंने वजू करते वक्त उंगलियों का खिलाल करना तर्क किया है, भूल गया हो। उंगलियों को खिलाल करना सुन्नतों में से है, 13 सुन्नतों में से सुन्नत है दाढ़ी का खिलाल करना और उंगलियों का खिलाल करना, मैंने वो सुन्नत छोड़ दिया है, लिहाजा मुझे वजू कराओ। एक शागिर्द ने कहा, हजरत फर्ज तो अदा हो गए, पूरे सुन्नतों तो अदा हो गई, एक ही तो सुन्नत छूट रही है। हजरत को जलाल आया, कहा कि थोड़ा वक्फा बाकी है, थोड़ा वक्फा बाकी है, दुनिया की जिंदगी खत्म होने वाली है, थोड़ी देर के बाद मैं आका से मिलने वाला हूं, थोड़ी देर के बाद मैं आका से मिलने वाला हूं। जब कब्र में डाला जाएगा, आका की सूरत मेरे सामने आएगी और आका मुझे पूछेंगे, ऐ शिबली आया तो आया, मेरी सुन्नत छोड़कर आया, तो मैं आका को क्या जवाब दूंगा? सोचो मेरे मोहतरम दोस्तों, एक छोटी सुन्नत को छोड़ने के लिए, छोड़ने पर इतना बड़ा बोझ महसूस कर रहे हैं। हम तो फराइज को हड़प कर रहे हैं, हम तो वाजिबात को हड़प कर रहे हैं, हमारे सर के ऊपर जूं भी नहीं रेखती। हम ऐसे आशिक हैं? नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, आशिक उसे कहा जाता है कि आका के हर कौल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। अल्लाह ताला इस दुआ, अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने से ज्यादा मुझे तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।